This conference will now be recorded. ठीक है वो देख लेंगे। इधर आके बस तो बेटी चाहिए म्यूट है ना माइक पे म्यूट है ना म्यूट से म्यूट नहीं नीचे रख दो कोई गलती नहीं बस चलिए होगा नहीं नीचे मैं देखना नहीं है ना ना एक मेनू है क्या उधर हाँ ये जूम है नहीं नहीं ये थोड़े आप दोनों ही गो
Shall we start, sir? Yes, sir. The voice Very audible? good morning to all present here. Now I would request Professor Amarpreet Kaur ma'am to kindly introduce the speaker of the first session of second week of AICT sponsored faculty development program. We welcome you here, sir. Please, ma'am. Good morning, everyone. I extend a warm welcome to all in the online FTP. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? सर आवाज आ रही है? Good morning, everyone. I extend a warm welcome to all in the online FTP being held by the Department of Business Administration in Guru Nanak Dev Engineering College, Ludhiana. Our today's guest is Dr. Amit Kamra, who is working as an assistant professor in Department of Information Technology in Guru Nanak Dev Engineering College, Ludhiana. He has more than 18 years of teaching experience. He has done his BTech from Punjab Technical University, Jalandhar in 2001. He did his MTech he did his MTech in Information Technology in 2004 from Punjabi University, Patiala. Dr. Amit Kamra did his PhD in Computer Science from SLITE, Longowal in 2014. Dr. Kamra is also PhD coordinator and convener NBA committee of our college. His area of interest are data mining, network security, remote sensing, image processing, etc. He has received grants of more than 20 lakh from various agencies like AICT, UGC, PTU, Jalandhar. He has published papers in journals of good repute. He has also written one book of computer peripherals and interfaces and published technical report with reputed publishers. He has worked in the capacity of assistant registrar, deputy controller of examination. He has guided 29 MTech theses and is guiding 5 PhD scholars. So we welcome you, sir, and over to you, sir. Good morning to all of you. Good morning to all of you. Is my voice audible? Any of the participants please confirm? Yes, sir. Okay. Sorry. Thank you, Sandeep. Okay. Myself, Amit. Thank you, Amanpreet ma'am. Thank you, Navdeep ma'am. Thank you, Parampal sir, for inviting me for a lecture today. In fact, I'm not a person from management background. I'm from a computer science and IT domain, but nowadays all the disciplines are interdisciplinary, and in whatever field we observe, the management plays a very important role in almost every field. So we need a managerial skills in engineer also, and we are lucky to have a management department who imbibe such sort of qualities in our technocrats and management students. My lecture today is a very hot topic and need of the day: designing learner-centric MOOCs. See, we have been living in this era of pandemic for the last 9 to 10 months, and it is almost a year we are waiting that this 2020 gets finished and we start a new beginning in the 2021 by meeting virtually everywhere. So my topic is a bit related to that only. So we are talking of MOOCs every day. Let's start the presentation. कोई echo तो नहीं है, Sandeep? Is there some echo तो नहीं है? Is the voice perfectly fine and now audible? Ma'am, was pretty fine, audible. Anybody please acknowledge? Deepika and Dr. Rahul, is there any echo तो नहीं है कोई? No, sir, नहीं है. ठीक चल रहा है, Thank you. Okay, thank you. No, Okay, sir, there is no echo. Okay, thank you very much. Thank you. So, what's trending nowadays? आजकल क्या trend चल रहा है? We are talking of some terms like webinar, online courses, virtual seminar. In fact, आज भी हम virtual seminar में मिले हैं. Virtual class, online FDP, online STTP, online training programs. Today my lecture will be basically related to how to develop this online lecture. That the term is technically called MOOCs.
So this is one of the very significant component that has been evolved in the recent time, the MOOCs. All of you might have known this name because some of you might have appeared in the NPTEL exams conducted by SWAYAM or IGNOU University and some other some other online platforms. But have you ever imagined that is it possible to create your own MOOCs? So this topic will be a very unique one because at the end of this 90 minutes lecture, I assume you will get a clear-cut idea that how you can create your MOOC. So this, please listen very carefully so that you can grab something out of this lecture. See, although this FDP is organized by our management department and Navdeep Manav is managing it, but basically this is a government money. So whenever government spends some money, in fact, it is our taxpayer money, which we as a Guru Nanak Dev Engineering College get through our management department. So whenever such sort of FDPs are organized or such sort of expertise lectures are organized, try to gain something from these lecture so that you can incorporate in your work culture in your institute as well. Okay, so let's start today. I'm talking of the very popular term called MOOCs. MOOCs is precisely called massive open online courses. We have been hearing this name for the last 9 months. पहले भी सुना करते थे, लेकिन in the last 9 months this name has been heard by a lot. मुझे याद है जब पैंडेमिक शुरू हुआ था मार्च के अंदर, तो हर रोज हमें IITs के लेक्चर को मैंने सब्सक्राइब कराया हुआ था. वी ऑलवेज लिसन, मतलब शाम को रोज ही 6 से 7 बजे मैं एक MOOC कोर्स अटेंड किया करता था. दैट वाज बेसिकली ऑफ 1 आवर लेक्चर. तो धीरे धीरे ये सारा ऑफलाइन FDPs का ट्रेंड ऑनलाइन FDPs में बदल गया. बट MOOC कोर्सेज स्पेसिफिकली बनाए किस लिए गए हैं? ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग योर ऑन MOOC, अगर आप अपना MOOC बनाना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये सारे टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे. ऑल ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि यार यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बना लें, लेक्चर दे दें, क्या वो भी एक MOOC होता है? आई एम सॉरी माय फ्रेंड्स, दैट इज नॉट ए, दैट इज जस्ट ए योर वीडियो लेक्चर आपने क्रिएट कर दिया, बट लेकिन वो MOOC नहीं होता. तो MOOC में क्या बेसिकली करते क्या है? वी आर गोइंग टू मेक ए क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट, okay, which should be accessible to the large number of the learners. So today what we are going to discuss, we are going to discuss how to incorporate the learner centric principles in MOOC setting. And finally at the end of 90 minutes आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि भाई अपना MOOC बनाते कैसे हैं. Okay, so how this term started evolved, this term MOOC. So this was happened in the early 1990s जब इंडिया में इंटरनेट आया था. तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली लोगों को एजुकेशन के लिए, इंक्रीजिंग द एक्सेस ऑफ द एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन लर्निंग. इनिशियल स्टार्ट जो किया था वो स्टार्ट हुआ था, द इनिशियल स्टार्ट वाज डन बाय ऑक्सफोर्ड, येल एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. ये तीनों यूनिवर्सिटीज वर पायनियर यूनिवर्सिटीज व्हिच स्टार्टेड दिस प्रोसेस. तो जो ऑनलाइन मीडियम का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था इन तीन यूनिवर्सिटीज ने किया था. एक और एफर्ट किया था विच वाज डन बाय प्रोफेसर फ्रॉम यूटा यूनिवर्सिटी, डेविड विले. उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज प्लान किए थे अपनी यूनिवर्सिटीज में. लेट्स गिव अ बिग अपलॉड टू दीस पर्सन हु वर द पायनियर इन द ऑनलाइन एजुकेशन. देयर वर 50 पार्टिसिपेंट फ्रॉम अराउंड 8 कंट्रीज उनके कोर्स में एडमिट हुए थे. तो धीरे धीरे द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन गेट फ्लरिश्ड एंड नंबर ऑफ अदर initiatives also got in the pipeline. Some of the names are Khan Academy. Khan Academy बड़ी popular academy इंडिया में भी. If you are having a kids, अगर आपके बच्चे हैं और साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो you can subscribe to Khan Academy tutorials. वो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं. जो अन अकेडमी है वो भी एक MOOCs कोर्स है. स्टैनफोर्ड ऑनलाइन पीयर टू पीयर नेटवर्क, ये MIT ओपन कोर्स वेयर, these were the first initial initiatives जिन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज को बनाना शुरू किया था. तो क्या हम अपना भी एक कोर्स बना सकते हैं? डेफिनेटली यस, लेकिन there are certain principles, there are certain methods, there is certain procedure how to develop your own MOOC course. Simply speaking, अगर आपको कोई लेक्चर आता है तो आप YouTube पे अपनी रिकॉर्डिंग करा लेते हैं, अपलोड कर देते हैं. That is not a MOOC course. Some people treat that as a MOOC course. ठीक है. So the next big revolution was done जब एक सबसे पहला ऑनलाइन कोर्स फ्लरिश किया गया था. That was introduction to artificial intelligence. 1,60,000 people ने एनरोल किया था.
लेकिन 20,000 ही कंप्लीट कर पाए थे एट द एंड ऑफ द डे। तो बाद में योडासिटी, आपने नाम सुना होगा, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, योडासिटी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था। ये बड़ा पॉपुलर है इंडिया में भी, 2012 में इसको बनाया गया था। The big revolution was happened in the year 2012 when it take the MOOC of the बहुत सारे MOOCs platforms ने originate हो गए। Some of the names are Coursera, edX, Future Learner, OpenHPI। इंडिया में MOOCs बोलते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, Ellie Academy। in the year 2012 AICTE ने ऐसा सोचा कि यार इंडिया में हर बंदे को IIM या IITs में एडमिशन नहीं मिल पाती है, तो देयर मस्ट बी सम प्रोसेस कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि उनके लेक्चर्स हैं जो एक आम बंदा भी सुन पाए, एक जिसको IITs या IIM में एडमिशन नहीं मिलती। धीरे धीरे ये और भी रिप्यूटेड कॉलेजेस के प्रोफेसर्स उन्होंने इन्वॉल्व करने शुरू कर दिए थे। इनफैक्ट हम भी GNE में काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं कि हम अपना MOOC कोर्स क्रिएट कर पाएँ। पहले हमें MOOCs पेपर देने पड़ते हैं, MOOC सीखना पड़ता है, उनके पढ़ाने का ढंग देखना पड़ता है, बिकॉज दिस क्रिएटिंग ए MOOCs इज डिफरेंट फ्रॉम अवर नॉर्मल ट्रेडिशनल टीचिंग। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें देखना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे मे बी आने वाले दिनों में हम भी अपना एक MOOC बना पाएंगे, बट पहले वी मस्ट हैव द कमांड ओवर दोज टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर रिलेटेड इन डेवलपिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। आज मैं आपको कोर्स नहीं करा रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द गाइडलाइंस हाउ टू क्रिएट योर ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, विच इज लर्नर सेंट्रिक। इसको नाम को प्रॉपर बोलते हैं लर्नर सेंट्रिक। So what about India? India also witnessed large initiatives in the field of education during these years. There was a program designed by AICTE, the National Program on Technology Enhanced Learning, which was called NPTEL। उन्होंने अपना कोर्स बनाया जिसमें उन्होंने वीडियो रेपोजिटरीज होंगे IITs के, IIM के प्रोफेसर्स के और अदर रेप्यूटेड प्रोफेसर्स के। उनका मेन एम क्या था? The main aim was to train the around 10,000 टीचर्स। पहले ये था। तो MOOC बड़ा कॉमन वर्ड हो गया था 2012 में, लेकिन इसको ज़्यादा ट्रेंड किया है 2017 2018 में। ठीक है, जब भी पॉपुलर होना शुरू हुआ, थोड़ा इंटरनेट इजी अवेलेबल हो गया। लेकिन 2019 में जब पैंडेमिक आया, तो हमें ये 2020 में सॉरी, तो हमें अपने घर पे हम स्टिक हो गए। तो बहुत सारे MOOCs क्रिएट हुए ताकि लोग पढ़ना ना भूल पाएं। बिकॉज एज फार एज वी टीचर्स आर कंसर्न्ड, आई ऑलवेज फील कि टीचिंग एक लर्निंग होती है। जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम पढ़ाते रहेंगे। आई डिड माई बीटेक इन 2001। आज से 19 साल पहले मैंने बीटेक की थी, और आई एम फ्रॉम ए कंप्यूटर्स IT बैकग्राउंड। आवर लाइन कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे। तो हमें बड़ा टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करना पड़ता है। वी नीड टू अडेप्ट टेक्नोलॉजी अ लॉट। तो वी कीप ऑन लर्निंग एवरी टाइम। अभी तक मैं कम से कम 4 या 5 MOOCs में दे चुका हूँ, एंड आई हैव गॉट 1 गोल्ड मेडल इन 1 MOOC, एंड एक और MOOC कोर्स में मुझे सिल्वर मेडल भी मिला था। अपीयर करके मैंने नंबर लिए थे ऑल ओवर इंडिया में। आई गॉट ए गोल्ड मेडल एंड आई गॉट ए सिल्वर मेडल ऑल्सो इन 2 MOOC कोर्सेज। अभी 17 को एक मेरा और MOOC कोर्स का एग्जाम है। तो स्लोली एंड सडनली हम तो अभी सीख रहे हैं, बिकॉज आने वाले 5 या 10 सालों में अपना एक MOOC कोर्स बना पाएंगे, जो सारे ऑल ओवर इंडिया लेवल में कॉलेजेस के दूसरे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स उससे कुछ सीख पाएंगे उन लेक्चर सीरीज से। पॉपुलर क्यों हुआ MOOC कोर्स? क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी थी। तो लेट्स स्टडी कि बनाते कैसे हैं MOOC को। ठीक है, बट हैव यू एवर थॉट यू क्रिएटेड योर MOOCs? ओके, क्या कभी सोचा आपने अपना MOOCs बना सकते हैं? Now the term here come is called learner centric MOOCs। learner centric MOOCs क्या होते हैं? एक होता है टीचर सेंट्रिक, एक होता है लर्नर सेंट्रिक। मैं बोले जा रहा हूँ यहाँ पर, देयर आर पार्टिसिपेंट सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन। तो मेरी आपसे इंटरेक्शन कितनी हो पा रही है, मैं आपको कितना इन्वॉल्व कर पा रहा हूँ अपने लेक्चर के साथ, आप हाउ मच यू आर गेनिंग फ्रॉम माई लेक्चर। आपका फीडबैक मुझे बताएगा, आपका टेस्ट मुझे बताएगा लेकर कि आपको मेरे लेक्चर से कितनी समझ आ पाई। एक होता है कि मैंने लेक्चर दे दिया, पल्ले पढ़ा नहीं पढ़ा, दैट इज ए टीचर सेंट्रिक। एक होता है लर्नर सेंट्रिक में लर्नर्स
उसको हम अडेप्ट करेंगे। दैट्स वाई द नेम जो आप सुनते हैं ना बहुत बार, आउटकम बेस्ड एजुकेशन। आउटकम बेस्ड एजुकेशन यही है कि हमने स्टूडेंट्स को लर्नर सेंट्रिक बनाना है। हमारे आज की पढ़ाई जो है टीचर सेंट्रिक नहीं है। आवर टीचिंग इज लर्नर सेंट्रिक। लर्नर सेंट्रिक में होता क्या है, एक्टिव लर्निंग होती है, ग्रुप डिस्कशंस हमने करनी होती है, पीयर लर्निंग, एक दूसरे से सीखना होता है। ये हम क्लासरूम में भी करते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा इससे ऊपर चले जाते हैं। वी आर गोइंग टू मेक लर्नर्स गो बियॉन्डली सिंपली लिसनिंग टू द लेक्चर्स और टेकिंग नोट्स एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स। ये नहीं चाहते हम उन्हें चाहते हैं कि वो इमीडिएटली प्रैक्टिस करें, फिगर आउट थिंग्स करें, अपनी थिंकिंग को एक्सप्रेस करें, अपने पीयर लर्नर से लर्न करें, डिस्कशन फोरम, डिस्कशन बनाएं, एक ग्रुप की तरह डिस्कस करें। तो उनसे क्या होता है, उनकी जो नॉलेज होती है हमारे स्टूडेंट्स की वो बेटर होती जाती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस teaching pedagogies which we were using. Now, to have a MOOC, we now go to thinking about the learner centric बनना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमारा एटीट्यूड, वी नीड टू चेंज द एटीट्यूड हाउ द लर्नर इज लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स। आप अभी पढ़ रहे हैं मेरे साथ पिछले 15 मिनट से, मैं अभी आपको एक इन्वॉल्व करूंगा थोड़ी देर बाद। अभी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आपसे भी कुछ पूछना शुरू करूंगा, तो प्लीज लिसन दिस लेक्चर वेरी केयरफुली because although it is a virtual platform, but unless and until the audience is not interactive, तो टीचर कुछ भी पढ़ाता रहे वो लर्नर सेंट्रिक नहीं होता। तो ये टीचर की ड्यूटी होती है कि ऑडियंस को इन्वॉल्व करना। बेसिकली आई फील लेक्चर देना भी एक एंटरटेनमेंट होती है, ठीक है। द ऑडियंस शुड फील एंटरटेन्ड बाय द लेक्चर, आपको मजा आए भी लेक्चर सुना, यार मजा आ गया लेक्चर सुन के। वी गो टू मूवी एंड सिट एंड रिलैक्स ऑन दैट, जो सीट्स होती हैं, हम थिएटर में जाके बैठते हैं, तो 3 घंटे बाद, हम 2 घंटे बाद बाहर निकलते हैं। अगर मूवी अच्छी लगी तो बड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। अगर मूवी अच्छी नहीं लगी तो आपको क्या लगता है कि पैसे भी वेस्ट हुआ, टाइम भी वेस्ट हुआ, तो यू डन नॉट गेट एंटरटेन। तो यहाँ पर भी आप अपना टाइम लगा रहे हैं मेरे साथ, 1-1.5 घंटा आप मेरे साथ लगाएंगे, बैठेंगे, मेरे को सुनेंगे। 1.5 घंटे के बाद आपको कुछ मजा आना चाहिए। मजे का मतलब, यू शुड गेन समथिंग फ्रॉम माई लेक्चर। दैट शुड बी द crux of any lecture, not only my lecture. So rather than how the learner is learning the concept, आपको एक वर्चुअल क्लास के सामने बोलना है। मैं किसी के फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा आज की डेट में, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा ही होता है, जब आप मूक्स क्रिएट करते हैं तो यू हैव 100 thousands of participants, you never know the who's the participant. Okay, thank you Shruti. You never know who is the participant and you are speaking in front of a virtual class. आज भी मेरे पास हमारी वर्चुअल क्लास है। फिजिकल क्लास होती तो मैं बड़े आराम से पहचान लेता हूँ कि भाई कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए 20 साल हो चुके हैं। तो आई इजिली गेस कि मेरा, आजकल तो वैसे ही व्हाट्सएप और फोन के कारण बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, तो वी हैव टू कीप द स्टूडेंट्स इंटैक्ट। स्टूडेंट्स को बिजी रखना बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है कि वो सुन के जाएं, ठीक है। क्योंकि हमारे स्टेक होल्डर्स में ना एक ये खास बात होती है कि अगर नंबर अच्छे आ गए तो उनकी मेहनत से आए, नंबर नहीं अच्छे आए तो टीचर ने शायद पढ़ाया नहीं है। तो एक तरीके से आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको बांध के रखना, ठीक है। Now, what are the ingredients of the MOOCs? MOOCs में होता क्या है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। Now consider a MOOC module and some topic, कोई टॉपिक बोलिए मैनेजमेंट का। आप मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम मैनेजमेंट बैकग्राउंड, तो एक टॉपिक ले लीजिए यार, HRM होता है आपका कोई टॉपिक, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैंने आपको 10 वीडियोस दी उसकी देखने को, छोटी छोटी वीडियोस दी, 1-1 मिनट की, अलग अलग टॉप बंदों ने क्रिएट की हुई है। नाउ लेट ऑल ऑफ यू वॉच सम सीरीज ऑफ वीडियोस, ठीक है। तो द लर्नर्स कैन बी गिवन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे सकता हूँ उसे एट द एंड ऑफ द वीडियोस कि आपने क्या देखा है इसके अंदर। मैं आपको कुछ एडिशनल रिसोर्सेज टॉपिक्स के ऊपर दे सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ डिस्कशन करा सकता हूँ आपके साथ, ठीक है। मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, ये सब कुछ होना चाहिए मूक के अंदर। यूट्यूब में क्या होता है, आप एक लेक्चर क्रिएट करते हैं यूट्यूब के ऊपर, जब यूट्यूब के ऊपर लेक्चर क्रिएट करते सिंपली यू हैव सम वीडियो, नथिंग एल्स, ठीक है। नाइदर उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, कमेंट्स जरूर आ जाते हैं, कमेंट्स को करता है या नहीं करता। देयर शुड बी सम डिस्कशन फोरम, देयर शुड बी सम इंटरेक्शन विद द पीयर्स, ठीक है। कुछ एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं, तो ये एक मूक्स बन जाता है। चलिए एक नई टर्म आपकी टीचिंग पैडागोगी में आप आज से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, दैट टर्म इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन स्पॉट। मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होती है रिफ्लेक्शन स्पॉट। तो मेरा आपसे क्वेश्चन, अभी अब चैट बॉक्स में ये रिप्लाई करना, अभी मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। इज दिस टाइप ऑफ द मॉड्यूल लर्नर सेंट्रिक मूक्स? मैं 10 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ अपने लेक्चर को, तो
अगली स्लाइड में इसका आंसर दूंगा। आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड के अंदर, क्या वो लर्नर सेंट्रिक मूक्स के आ जाते हैं, येस और नो? ये आपके लिए एक रिफ्लेक्शन स्पॉट है। रिफ्लेक्शन स्पॉट बताता हूँ 2 मिनट बाद। चलिए 10 सेकंड की ब्रेक है। So anybody of you can write in the chat box also. Is this type of the module learner centric? मैं देख रहा हूँ आंसर कुछ लोगों ने देने शुरू कर दिए। श्रुति ने दिया, राजेश जी, सोनल, बालाजी, सुनील कुमार प्लीज रिप्लाई, झा साहब प्लीज रिप्लाई, संदीप, शीला, श्रुति। एवरीबडी प्लीज ट्राई टू रिप्लाई। मैं आपको कैमरा नहीं ऑन कराऊंगा। सुनील जी, okay, some people have written yes. Okay. Now you have done this activity. Some of you might have thought that this is a learner-centric MOOC, but काफी कुछ है उसके अंदर. But then think the MOOCs you have taken. How many times did you post in the discussion forum? मैंने अभी आपसे लेक्चर ले रहा हूँ, तो मैंने कितनी बार डिस्कशन फोरम में कोई क्वेश्चन पोस्ट किया, कितने लोग उसको आंसर देंगे? ठीक है. How many times? Thank you, Jha Sahab. How many times did you post on the discussion forum? How many of the posts were pertinent to the content of discussion? मतलब relevancy थी या नहीं थी? How many of them were about some of the logical aspects? कितनों ने उस discussion forum में, मान लो कुछ क्वेश्चन ही पूछा यार, what is HRM? तो आप में से कईयों ने रिप्लाई किया, कईयों ने रिप्लाई रेलिवेंट थी, कईयों की रिप्लाई इररेलेवेंट थी. ठीक है. Some of you, how many references were provided? मैंने HRM के लिए आपको कोई रेफरेंस दिया, कोई पेपर दिया उसको पढ़ने के लिए? कितनों ने वो रेफरेंस एक्चुअली पढ़ा जाकर? कितने टाइम अपने वो वीडियोस जो मैंने आपको दी थी वो देखी बार बार दोबारा? कितनों ने वो वीडियो स्किप कर दी? हम वीडियो स्किप भी कर देते हैं. मुझे याद है मैं अपने स्टूडेंट्स को वीडियो लेक्चर में पढ़ाता हूँ, कभी कभी अच्छी सी वीडियो देता हूँ तो वो स्किप भी कर देते हैं. तो इट इज पॉसिबल लर्नर्स ने डिस्कशन की ना हो. यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ, ये देयर आर more than 20 पार्टिसिपेंट, तो 3 या 4 ने मेरे साथ डिस्कशन की, श्रुति, संदीप एंड मिस्टर झा. आपने डिस्कशन की, तो बाकी ने डिस्कशन नहीं की, बाकी मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं हुए. तो इसका मतलब या तो हो सकता है वो लॉग इन करके कि अपना दूसरा काम कर रहे हैं, नेवर माइंड, मैं आपके साथ पर्सनल नहीं हूँ. ठीक है. या हो सकता है उनको मेरी बात समझ नहीं लग रही हो, या उनका मजा ना आ रहा हो. तो ये मेरे एंड पे थोड़ी कमी है कि अगर आप अपना कोई काम और नहीं कर रहे, अगर आप मेरे से लेक्चर सुन रहे हैं, तो 21 में से एटलीस्ट 75% मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई करें. ठीक है. तो इसका मतलब है कि डिस्कशन फोरम भी एक्टिव हो. चलिए यहाँ पर सिर्फ 3 या 4% लोगों ने किया रिप्लाई. तो ये सब कुछ मूक्स के अंदर आ जाता है. जब आप यूट्यूब में लेक्चर अपलोड करते हैं, आपने लगा कि यूट्यूब के ऊपर लेक्चर अपलोड कर लेंगे तो आपको मूक्स क्रिएट करना आ जाएगा. जब आप मूक क्रिएट करते हैं ना, आईआईटी में जाते हैं, कहीं आईआईटी रुड़की है हमारा नॉर्थ इंडिया का नोडल सेंटर. मान लो आपने को मूक्स क्रिएट करना है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मूक्स के लिए क्या करना है. आपकी आईआईटी रुड़की में इंटरव्यू होगी, हाँ, वहां पर आपको एक यूट्यूब का लेक्चर काम आएगा. ठीक है. ओके. वहां पर आपको एक लेक्चर अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन उस लेक्चर, अगर आप ऐसा लेक्चर बना लो जिसमें स्टूडेंट का डिस्कशन फोरम भी हो, क्वेश्चनिंग भी हो, रिसोर्सेज भी हो, वो सब कुछ मूक्स कहलाता है. टेक्निकली उन सब चीजों के कुछ नाम है. So what we mean by these things, we have some set of videos. हम अपनी वीडियो बनाई, आपने कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन देनी है, आपने HRM की वीडियो बना ली. HRM आपने खुद ही बोला कि HRM क्या होता है. 5 मिनट्स वीडियो बनाई, आपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, HRM क्या कुछ रिसोर्सेज दिए, एक डिस्कशन फोरम बना दिया जहां पर आपने एक क्वेश्चन, एक थ्रेड क्रिएट कर दिया कि व्हाट आर द स्किल्स फॉर ए HRM मैनेजर. चलिए, आई एम नॉट फ्रॉम मैनेजमेंट बैकग्राउंड, एक वेग सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, what are the skills required for a person to be a human resource manager. ठीक है. तो उस थ्रेड के ऊपर सब लोग अपने अपनी रिप्लाई करेंगे. कुछ लोगों की रिप्लाई बड़ी सटीक होगी, कुछ लोगों की रिप्लाई वेग सी हो सकती है, लॉजिकल भी हो सकती है, इररिलेवेंट भी हो सकती है, लेकिन एक चिंगारी भड़का दी हमने, एक थ्रेड क्रिएट कर दिया. ठीक है. थोड़ा उससे क्या होगा, लोग एंगेज होना शुरू हो जाते हैं. तो ये सारा कुछ मूक्स कहलाता है. ठीक है. Now the initiative is left to the learners for doing the practice all those things. उस थ्रेड में वो रिप्लाई करें, डिस्कशन करें, इन सब चीजों को एसिमुलेट करना पड़ता है एक मूक्स के अंदर. ठीक है. So when we simply make some practice problem available to the learners, there is no mechanism for learner to express their thinking. तो यहाँ पर हमें एक फीडबैक भी लेना पड़ेगा. ठीक है.
अगर आप सिंपली एक के बाद एक वीडियो रन कर देते हो, उनको दिखाते हो, उसमें कुछ नहीं होता। दे सिंपली वॉच दोज वीडियोस, बट वो हाँ, आई गिव स्मॉल प्रोजेक्ट आफ्टर सम सेट ऑफ टॉपिक्स। एग्जैक्टली श्रुति, तो उसके बाद आपने एक थ्रेड भी क्रिएट कर दिया करो। थ्रेड क्रिएट करके हम यहाँ जीएनई में हमारा ना एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम मूडल बोलते हैं। मेरा एक लेक्चर और है आपके साथ, शायद अगले हफ्ते में होगा या इस हफ्ते में लास्ट में, मूडल आपको बनाना सिखाऊंगा। तो मूडल में आप क्या करते हो, आप एक लेक्चर भी आप उसके ऊपर थ्रेड क्रिएट कर सकते हो। ये सब कुछ मूडल के अंदर पॉसिबल है। तो आप एक डिस्कशन फॉरम क्रिएट कर दिया करो, एक क्वेश्चन पूछ लो, उस क्वेश्चन के सब लोग बच्चे रिप्लाई करेंगे, उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट बढ़ जाती है। देखिए हमारा बेसिक मोटिव क्या है, वी वांट टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ आवर स्टेक होल्डर्स। तो हमारे स्टेक होल्डर्स की हमने एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है, उसके लिए उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा पढ़ाई के अंदर। और आजकल तो वैसे ऑनलाइन है, आपके मेरे बच्चे, 2 बेटी हैं मेरी, मुझे पता है वो जब ऑनलाइन क्लासेस लगाती हैं, वो टीचर, उनके टीचर एक पेडागोगी अपनाई है, टीचर उनकी फिजिकल अटेंडेंस लेता है, वो कैमरा ऑन करवा के पढ़ाता है। हम बीटेक वालों को पढ़ाते हैं, हमारे आधे से ज़्यादा स्टूडेंट कैमरा ऑन नहीं करते हैं। अटेंडेंस तो हमारा खैर सॉफ्टवेयर ले लेता है, हम नहीं लेते हैं, बट दैट इज़ अ पेडागोगी टीचिंग प्रैक्टिस टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट, बिजी रहे साथ में, चेक करना होता है कि स्टूडेंट वाकई बैठा या नहीं बैठा। तो ऑनलाइन एजुकेशन में बड़ी डिफिकल्टी है ये चीज, ये सब प्रोसेस। सो तो करना क्या पड़ेगा, देखिए बड़ी दिक्कत आती है, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। नाउ एन इंस्ट्रक्टर जो जिसने मूव कोर्स क्रिएट करने हैं, ही हैज टू कीप लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड। पहली बात तो आज मैं देख रहा हूँ देयर आर साउथ इंडियंस कम है। पिछली बार इनका मैनेजमेंट का प्रोग्राम हुआ था, इनका एक एफडीपी था, so I got a request from one of the participants that I should speak in strictly in English, nothing any vernacular language use नहीं करनी। I suppose everybody are from the North India and they understand Hindi or Punjabi because we are more comfortable in our native language. So in that lecture I have to keep the diversity in mind. तो जब आप MOOCs कोर्स क्रिएट करते हो तो डाइवर्सिटी को मतलब माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि लोग जो होते हैं अलग अलग लोकेशंस के होते हैं। तो इंस्ट्रक्टर को डिज़ाइन एक्टिविटीज़ बड़ी क्रिएट करनी पड़ती हैं, क्विज बनाना, फिल इन द ब्लैंक्स बनाने, रिव्यू क्वेश्चन बनाने। तो इमीडिएटली स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस भी करवानी पड़ती है लेक्चर के बाद ही, बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स को फीडबैक भी लेना पड़ता है उनका। ऐसी एक्टिविटीज़ बनाएं जिसमें स्टूडेंट की थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा खुल के नज़र आए। आजकल ओपन बुक का एग्ज़ाम का ट्रेंड बड़ा है, ठीक है, तो एक्सप्रेस थिंकिंग, आप एक दूसरे से बात कर पाएँ, ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। चलिए हम टेक्निकल पार्ट पे चल रहे हैं 2 मिनट बाद। नाउ द इंस्ट्रक्टर हैज़ टू डिज़ाइन, ऐसी एक्टिविटीज़ बनानी पड़ेंगी जिससे वो रिसोर्सेज को एंगेज कर पाएगा। प्लीज़ मेक श्योर इन 20 मिनट में, जो तक अभी मैंने बताया, मैं आपको मूक्स कुछ नहीं अभी बनाना सिखाया। अब आने वाली स्लाइड में मूक्स बनाएंगे 5 मिनट बाद। लेकिन ये सारी MSQs भी अच्छी ऑप्शंस हैं। रिफ्लेक्शन स्पॉट अभी 2 मिनट बाद आएगा, तो आप रिफ्लेक्शन स्पॉट देखना उसके अंदर क्या होता है, ये आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी लगाओगे। लेट्स होम की ये पैंडेमिक खत्म हो जाए और जनवरी में हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस लगाएं अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में। तो प्लीज़ मेक श्योर इस आज मेरे लेक्चर से कुछ टेक अवे जो लेके जाना, ठीक है। एक छोटी सी मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आप अपने स्टूडेंट्स के एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। दैट टर्म इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन स्पॉट। अभी 2 मिनट बाद आएगी वो। So we need to identify the directions in which they want to further their learning concept. We need to ensure that we are actually benefited for looking some meaningful resources। जो उनको resources provide किए गए हैं कुछ उनसे benefit हो उनका, ऐसे ही बस देने के लिए मत दे दीजिए, ये रेफरेंस पढ़ ले या ये रेफरेंस पढ़ ले। फाइनली इंस्ट्रक्टर्स क्या करेगा, एक स्टूडेंट्स शुड लर्न फ्रॉम पीयर ऑल्सो। मैं अपने स्टूडेंट्स को बड़ा क्लास में करता हूँ, हमारे मॉडल के अंदर ना ब्रेकआउट रूम बन जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में भी। 5-5 का हम ग्रुप बना देते हैं, एक स्टूडेंट को इंचार्ज बनाते हैं, वो बाकी 4 स्टूडेंट का पढ़ाता है। पढ़ाने का सेंस ये नहीं कि वो लेक्चर देगा, he is a team leader and discuss with each others, that is called peer learning। ये MOOCs कोर्सेज में होती है, ठीक है। ये क्लासरूम सेटिंग में हमें पॉसिबल नहीं हो पाती। चलिए इस स्लाइड का बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम एक्चुअली MOOCs क्रिएट करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द लर्नर सेंट्रिक MOOCs। इनफैक्ट ये मैंने जो मैं स्लाइड जो दे रहा हूँ, मैंने एक कोर्स किया था डिजाइनिंग लर्नर सेंट्रिक MOOCs साल 2017 में। I got a silver medal in that course, so I acknowledge many of the slides are from that lecture only, which I have studied and then designed all those things. There are 4 terms which are necessary to create MOOCs। इस लेक्चर के बाद ये आपने चारों टर्म्स अभी सुनी नहीं होगी कभी भी इनके नाम, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर
आप इनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. बट इन द नेक्स्ट 1 hour आई विल ट्राई टू फुली आपको फेमिलियर कर दूं इन चारों टर्म्स के साथ. देयर आर 4 टर्म्स. वन इज कॉल्ड लर्निंग डायलॉग्स, LED, learning by doing, learning extension trajectories, learning experience interaction. These are the 4 components. ठीक है, these are the 4 components of the MOOCs which you need to incorporate in your MOOC course when you are going to create it. ठीक है, there should be a proper connection between all these 4 components and you should be assimilate them in a meaningful manner. कैसे कैसे इनको आपस में कनेक्ट करने हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. नाम याद रखिएगा, LED, LBD, LXT, LXI. शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा आने वाले अभी 1 घंटे में. LED, LBD, LXT और LXI. This is a diagram of the that particular pedagogy which is required to create the MOOCs course. LED, learning dialogue, LXI, learning extension trajectory, learning by doing. There is a term called orchestration. Orchestration को हम नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं बांध के रखना. We need to tie up all those things. ठीक है, we'll discuss each one by one. See, when we are creating our MOOCs, it is not sufficient to simply focus on simply transmission. काफी लोग ये समझते हैं कि YouTube के ऊपर एक लेक्चर बना देना, बना के अपलोड कर देना, वो एक MOOCs कोर्स बन जाता है. Simply uploading your lecture on the YouTube is not a MOOCs course. Okay, so this was a misconception even in my mind also when I didn't attended this course. So I need to incorporate all those 4 ingredients. So it is necessary to follow the learner centric MOOCs. तो ये मॉडल है, LCM मॉडल बोलते हैं इसे, LXC, LXT, LED, LBD, LXI and LXT. And this LCM model help the instructor to create this MOOCs which are learner centric in nature. हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट पढ़े, ना कि हम तो पढ़ चुके हैं. हमारी whatever we are teaching, the student should gain and student should imbibe those learning in his daily life. ठीक है, अकेला लेक्चर देके बोल देना that is not a sufficient task. कितना उसको समय लगा, कितना उसको फीडबैक उससे लीजिए, कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कीजिए, कुछ डिस्कशन फोरम कीजिए, ताकि उसकी लर्निंग लर्नर सेंट्रिक बन जाए, ताकि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी और बढ़े. किसी कल को किसी कंपनी में प्लेसमेंट में जाता है तो ऑल दोज थिंग्स जो हमने MOOCs कोर्स में डाली हैं वो उसे एक्चुअल लाइफ, रियल लाइफ में भी और बेटर एक स्टूडेंट बनाए. तो दिस इज द LCM मॉडल. वी हैव लर्निंग डायलॉग्स. लर्निंग डायलॉग्स क्या होंगे? इट प्रमोट द अटेनमेंट थ्रू लर्नर इंटरेक्शन. लर्निंग बाय ड्राइंग, इट इज ए फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्टिविटी. मैं अभी सारे डिटेल्स में बताऊंगा. लर्निंग एक्सटेंशन ट्रैजेक्टरीज, इट एडवांसेस लर्नर लर्निंग अलोंग द डाइवर्स पाथ. लर्निंग एक्सपीरियंस इंटरेक्शन विच कल्टिवेट द पीयर लर्निंग. अभी जस्ट थ्योरी बताई इनकी, एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको नाम. व्हाट इज LED? LED इज नॉट ए लाइट इमिटिंग डायोड. आपके घर पे जो LED लगी थी ये वो LED नहीं है, बट वो LED क्या करती है? रोशन कर देती है. इट इल्यूमिनेट्स योर होम. दिस आल्सो इल्यूमिनेट्स द ब्रेन ऑफ योर स्टूडेंट. लर्निंग डायलॉग और LED, इट इज कंसिस्ट ऑफ ए कंटेंट व्हिच मे बी सम वीडियो. चलिए आप एक टॉपिक बोलिए मैनेजमेंट का. अच्छा कोई टॉपिक बोलो मैनेजमेंट का. Fundamental. I have an MBA student sitting with me, so she told me some topic, fundamental analysis, fundamentals of management. So if you are a teacher of a management, you create a small video on fundamentals of management. ठीक है, then you're going to explain some topic. ठीक है, then you have to introduce reflection spots. Now reflection spot क्या चीज है? मैंने बताया था, आप रिफ्लेक्शन स्पॉट को अपनी फिजिकल क्लासरूम टीचिंग में भी लेके जा सकते हैं. रिफ्लेक्शन स्पॉट कुछ भी नहीं है, जो आपने 5 मिनट पढ़ाया, अभी 10 मिनट पढ़ाया, आप अपने लेक्चर को पॉज कीजिए, कंटेंट को पॉज करके लर्नर से उसी चीज के बारे में कुछ पूछिए. अगर वो सही आंसर दे पा रहा है, दैट मीन्स वो आपसे जुड़ा हुआ है. अगर वो सही आंसर नहीं दे पा रहा तो वो लेक्चर नहीं सुन रहा है. दिस इज ए रिफ्लेक्शन स्पॉट. ठीक है, एक ऐसा लेक्चर को चलाते चलाते 2 मिनट, जो आपने अभी 5-10 मिनट की वीडियो थी, मेक ए स्मॉल वीडियो ऑफ योर टॉपिक. 5 मिनट का जो लेक्चर रखा हुआ है, ये आपको MOOCs कोर्सेज के अंदर डालना पड़ेगा. अब जब कोर्स बनाओगे, आंसर भी आप ही नहीं देना है. जब आप पॉज कर लोगे 10 सेकंड, तो अगले 10 सेकंड के बाद आपका लेक्चर फिर से स्टार्ट हो जाएगा. देन यू हैव टू आंसर योरसेल्फ. तो कितने लोग अपना आंसर टैली करेंगे आपके रिफ्लेक्शन स्पॉट के साथ? ठीक है,
व्हाट एग्जैक्टली कंटेंट क्या हो सकता है? कंटेंट टिपिकली कुड बी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, मैंने अभी आपको टॉपिक दिया फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, कुछ टेक्स्ट हो सकता है जो इंस्ट्रक्टर पढ़ना चाहता है, ठीक है, कुछ एनिमेशन बना सकते हैं आप, ट्राई टू मेक ए मिक्स ऑफ ऑडियो वीडियो दिस सॉर्ट ऑफ लेक्चर। सो कोई भी कॉन्सेप्ट जो इंस्ट्रक्टर ने पढ़ाना है अपने सब्जेक्ट के बारे में, उस चीज को आप शॉर्ट वीडियो बोल सकते हैं। तो लर्निंग डायलॉग्स में क्या है, बेसिकली इट हैज ए रिफ्लेक्शन स्पॉट। तो रिफ्लेक्शन स्पॉट क्या है? एक क्वेश्चन है जो सोचने पर मजबूर करता है। आप इसको फिजिकल क्लासरूम में भी यूज करना, मैंने आपको बताया था, दिस इज अ टेक अवे फॉर योर होम कि जनवरी ऑनवर्ड्स आपकी फिजिकल क्लासेस चल रही हैं, आप 10 मिनट पढ़ाते हो, 10 मिनट पढ़ाने के बाद बच्चों को बोलो कि यार 10 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सब लोग सोचो, 10 सेकंड के बाद इसका आंसर दूंगा। वो 10 क्वेश्चन जो होगा दैट विल बी फ्रॉम द प्रीसीडिंग टॉपिक व्हिच यू हैव जस्ट टॉट टू देम। तो रिफ्लेक्ट ऑन द प्रीसीडिंग कंटेंट, तभी नाम पड़ा रिफ्लेक्शन स्पॉट। उससे क्या होगा? दे विल एक्सप्रेस देयर थिंकिंग, इट अलाउ द लर्नर टू माइक्रो प्रैक्टिस, छोटी छोटी साथ के क्लास में प्रैक्टिस हो रही है उनकी, दे विल फील, उनको डर लगेगा कि टीचर ने नेक्स्ट टाइम फिर से 10 मिनट बाद रिफ्लेक्शन स्पॉट ले आना है, तो वी शुड लर्न वेरी केयरफुली, ठीक है। सिंपली दे नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट जिन्होंने इमीडिएटली पढ़े हैं अभी, ठीक है। तो दिस इज द नेसेसिटी ऑफ ए मूक कोर्स। अगर आप यूट्यूब के ऊपर अपने लेक्चर डाल रहे हो तो ध्यान रखिएगा 10 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आप 3 या 4 मिनट बाद एक एक रिफ्लेक्शन स्पॉट या 2 रिफ्लेक्शन स्पॉट डाल सकते हो। रिफ्लेक्शन स्पॉट इज सम क्वेश्चन which could be in the form of a multiple choice or a fill in the blanks or short answer which enables the learner to think, सोचने पर मजबूर करता है उनको कि यार इसका आंसर क्या होगा। आंसर वो तभी दे पाएंगे जब उन्होंने वो लेक्चर सुना होगा। So the reflection spot is basically it is going to make a connection with the content which is immediately preceding it. Okay, so goal of the LED क्या हुआ? We are going to provide a conceptual knowledge. Okay, so it's in a way the person will be able to micro practice and reflect on what they have learned. Clear? So how do the instructor do these all those things? Instructor कैसे करता है? Instructor does all this by creating a learner dialogue. कुछ वीडियो बनाता है अपनी, जिसमें अंदर कुछ कंटेंट है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक चुना आपने, it has some reflection spot, they should be related to each other, so the learner are able to access the content. Okay, they respond to some question, they express their thinking. This is the process which the learner is use. चलिए, आपसे एक रिफ्लेक्शन स्पॉट पूछने का टाइम आ गया। देखते हैं कितने लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, कितनों ने वर्चुअली बस लगा के इधर उधर रख दिया अपना मोबाइल। नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, दिस इज अ रिफ्लेक्शन स्पॉट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग डायलॉग ऑफ ए कंटेंट डिलीवरी वीडियो? कंटेंट डिलीवरी वीडियो, आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब वीडियो, और लर्नर डायलॉग जो आपने एलईडी में बनाया है। आई एम पॉजिंग फॉर 10 seconds, आप चैट बॉक्स में भी कुछ आंसर लिख सकते हो। प्लीज एवरीबडी ट्राई टू राइट समथिंग, जस्ट यू रिप्लाई। What is the advantage of learner dialogue over a content delivery video? Everybody please write. Whatever comes to your mind. Otherwise I will point out somebody and ask. I got just one reply till. It is a two-way communication. Sandeep, learner dialogue is interactive and have threads and discussion. Good one. Rahul ji, कोई reply कीजिए. Dr. Sanjeev, if you are there. Dr. Balaji, Dr. Sunil, many of you might be senior than me. I beg your pardon if I am telling you, but today I am your instructor, so I can ask you anything which you all are supposed to reply. So I've got some good answers. Most of the answers are right one. So this is a reflection spot. You have to think about उसमें क्या होता है? One more answer is got. Creates interest and discussion are two good one. So अपने सभी ने आंसर देखे यहाँ पर चैट बॉक्स में, काफी वो बिल्कुल टू द पॉइंट थे। What happened in the content video? Content video is just like a YouTube video. You create your channel and you post your lecture on the YouTube. Now from वो जनरली 1 घंटे के हम बनाते हैं, 1 घंटे के लेक्चर को सुनता नहीं है, मैंने आपको बोला लोग फॉरवर्ड ही कर देते हैं। तो whenever you are creating your MOOC should be of a 20 to 25 minutes maximum. एक ह्यूमन टेंडेंसी है, वो 15 से 16 मिनट बाद में बोर हो जाता है, खासकर जो वो पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो ये तो आपके लिए बड़ा चैलेंज है 1.5 घंटा मेरा लेक्चर सुनना, जो हमें भी पता है कि मैं भी लेक्चर सुनता हूँ जब कभी, तो 15-20 मिनट बस पढ़ता हूँ, फिर हम माइंड गेट डिस्ट्रैक्टेड, तो हम फिर दोबारा
उसको कैपिटलाइज करके दोबारा आ जाते हैं, तभी वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन डाली जाती है अटेंडेंस की या और सख्ती की जाती है कि भी सुने, लेक्चर सुने। बट एक जनरल ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। तो एक टीचर के बड़ा चैलेंज होता है कि वो स्टूडेंट को 1 घंटा बिजी रखे। तो फ्रॉम 1 hour लेक्चर राइट डाउन टू द शॉर्ट, वी नीड टू इनकॉर्पोरेट इंटरेस्टिंग एंगेजिंग वीडियोस। थैंक यू। मेरे साथ आप रिफ्लेक्शन स्पॉट के अंदर व्हाट डू यू थिंक इज आइडियल वीडियो टाइम फॉर ए वीडियो लेक्चर? श्रुति, आप ड्यूरेशन के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने बताया 15 मिनट मैक्सिमम होता है। कभी कभी मैं लेक्चर में सुनता हूँ 30-35 मिनट वाले होते हैं। आप बेशक एक काम करें, 15-15 मिनट के 4 लेक्चर बना दें, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। बेशक आप 1 घंटे का ही लेक्चर बोलना आपने, तो 1 घंटे के बजाय यू मेक ए 15-50 मिनट्स लेक्चर, तो वो लोग क्या एक तरह से ब्रेक हो जाती है उनकी, क्योंकि जो आई हैव रिसर्च टू मे बी 12 मिनट्स होगा शायद, मैंने कहीं पढ़ा, मैंने 12 मिनट पढ़ा था, तो अब 12 से 15 भी लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। तो बेसिकली व्हाट श्रुति इज ट्राइंग टू से, ये भी बिल्कुल ठीक है कि हम 12 से 15 मिनट ही हम सुन पाते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे का लेक्चर अब बना दिया जाए। 2 घंटे की मूवी तो देख सकते हैं हम, लेकिन हम 1 घंटे का लेक्चर नहीं सुन सकते। कारण ये है कि हमें अपने माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए। मूवी हमें रिलैक्स करती है और लेक्चर को जब हम सुनते हैं तो थोड़ा सा हम उसे प्रेशर डाल पे उसके अंदर कुछ कुछ सीखना होता है। तो कुछ जो मैटर ऐसा होना चाहिए कि वो इंटरेस्ट को कल्टीवेट करे, आपको जोड़े उस चीज़ के साथ। तो इसलिए आप धीरे धीरे 12 से 15 मिनट बढ़ाइए, 15 से 20 मिनट बढ़ाइए, उसके शॉर्ट बीच में रिफ्लेक्शन स्पॉट डालिए, बीच में कुछ क्वेश्चनिंग डालिए, ताकि उसके इंटरेक्शन बनी रहे आपके स्टूडेंट की या जो भी आपके लेक्चर सुनते हैं, ठीक है। तो इट शुड बी नॉट, यूट्यूब में 1 वे हो जाता है, 2 वे डायलॉग नहीं होता, ठीक है। मूक्स में आपने 2 वे डायलॉग, बेशक आपसे मूक में भी आपने फिजिकली किसी से बात नहीं करनी है, बट आपने जस्ट एक क्रिएट कर देना एक प्लेटफॉर्म, जिससे वो क्वेश्चन भी पूछेंगे, आप उससे क्वेश्चन भी रिप्लाई में आएंगे। हमें याद है जब हम मूक्स कोर्स लगाते हैं तो किसी कोर्स के अंदर, प्लीज समबडी, माधुरी अपना माइक बंद कर लीजिए, माधुरी सॉरी। तो थिंक ऑफ व्हाट इज द वे इन विच डायलॉग इज डिफरेंट फॉर देम। सो एक आप एडवांटेज भी लिख सकते हैं लर्निंग डायलॉग की, कंटेंट डिलीवरी वीडियो के ऊपर क्या हो सकती है। जनरली जब हम थ्रेड क्रिएट करते हैं ना, बच्चे माइक बंद करिए माधुरी, तो जनरली होता क्या है, कर दिया उन्होंने शायद, वेरी गुड। माधवी जी प्लीज माइक बंद कर दीजिए। तो जनरली हम जब जनरली होता क्या है, जब हम एक मूव कोर्स बनाते हैं, मुझे याद, हम थ्रेड क्रिएट करते थे डिस्कशन के लिए, 400-400 बंदा होता है, कभी कभी एक ही क्वेश्चन के ऊपर बड़ी लोग चैट करते हैं। आप व्हाट्सएप देखते हैं ना, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं आप, व्हाट्सएप पे जब आप चैट करते हैं तो एक ही क्वेश्चन है, हमारे फ्रेंड सर्कल में ग्रुप बने होते हैं, तो एक कोई बंदा डिस्कशन फोरम क्रिएट कर देता है, तो सब लोग उसी के ऊपर कमेंट दे रहे हैं, कुछ पॉजिटिव बोल रहा है, कुछ नेगेटिव बोल रहा है, कईयों को उसके अंदर गुस्सा भी लगता है, तो ग्रुप को छोड़ के भी चले जाते हैं। आपने देखा होगा, इट्स हैपन एवरी टाइम इन व्हाट्सएप ऑल्सो। हाउ टू मेक ए थ्रेड इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट? श्रुति, थ्रेड इंटरेस्टिंग नहीं बनाना पड़ता, थ्रेड में तो आप रेलिवेंसी क्वेश्चन ही कुछ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन डालना पड़ता है, जिससे स्टूडेंट के थिंकिंग प्रोसेस एक्साइट हो जाए। आप एक सिंपल डेफिनेशन पूछोगे तो वो एक अलग बात हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, आज के दौरान हॉट टॉपिक है ये, फार्मर्स का इशू है, आप एक आपके ग्रुप बनाओ फ्रेंड सर्कल का, तो आप उसके अंदर एक चैट फोरम डिस्कस कर दो कि यार इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताओ। तो some people who are favor in those issues will reply some good points, some people who are in the not in the favor of those issues will reply negative things, या उनके वो नेगेटिव आंसर्स होंगे। तो थ्रेड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको थोड़ी सी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी कुछ क्वेश्चन के अंदर। आप सिंपली डेफिनेशन नहीं पूछ सकते उनसे, कुछ ट्रिकी सा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर बुक में ना मिल पाए, उनको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा अपना, ठीक है। थैंक यू। सो सम ऑफ यू माइट हैव ए, एक लर्नर डायलॉग जो होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए, जैसे मैंने बताया 12 मिनट, इन्होंने श्रुति ने बताया, ठीक है, 12 मिनट का होना चाहिए। लर्निंग डायलॉग किसी टॉपिक के बारे में बताना चाहेगा, वो थोड़ा फोकस होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है, देन इट शुड बी कन्फाइंड टू फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट ओनली, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर ऑल ऑफ दीज आर वेरी वैलिड रीजन। नाउ रिफ्लेक्शन स्पॉट कैन हैव मेनी बेनिफिट्स। आप इसको अपनी नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग में भी इन्वॉल्व करके देखना, आपको बड़ा मजा आएगा जब आप स्टूडेंट के साथ पढ़ाते पढ़ाते 10 मिनट के बाद एक रिफ्लेक्शन स्पॉट ले आओगे। तो इसका मतलब लगेगा कि लर्नर सिंपली इज नॉट वाचिंग योर लेक्चर, इफ ही इज एबल टू रिप्लाई योर रिफ्लेक्शन स्पॉट क्वेरी, वो आपका वाकई सुन रहा है आपका लेक्चर, ठीक है। तो जो ये डायलॉग होता है वही आप इंट्रोड्यूस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में भी कर सकते हैं रिफ्लेक्शन स्पॉट, या किसी और क्वेश्चन कोई एक सिंपली रिव्यू क्वेश्चन भी डाल सकते हैं।
दिस वाज समथिंग एलईडी। एक और एडवांटेज है रिफ्लेक्शन स्पॉट की, इमीडिएटली पता चल जाता है कि यार कौन स्टूडेंट कनेक्टेड है, कौन स्टूडेंट कनेक्टेड नहीं है। सो इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर टू इमीडिएटली एक्सप्रेस देयर थिंकिंग। स्टूडेंट को बड़ा मजा भी आता है। हम छोटे होते हैं जब व्हेन वी आर किड ना, तो क्लासरूम में जब टीचर पूछता था क्वेश्चन, वी रेज आवर हैंड, मैम मे आई से, मैम मे आई से, तो वो स्टूडेंट्स वो चीज़ भूल जाते हैं जब वो हायर एजुकेशन में आते हैं। तो रिफ्लेक्शन स्पॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स दैट फीलिंग बैक इन देयर माइंड। ओके, तो दे नीड टू एक्सप्रेस देयर थिंकिंग एंड द लर्नर कैन गेट फीडबैक ऑल्सो। उससे फीडबैक भी मिल जाता है कि यार कितना रिस्पॉन्स सही दिया, कितना रिस्पॉन्स नहीं दे पाए सही। कुछ मिथ्स है रिफ्लेक्शन स्पॉट के बारे में। रिफ्लेक्शन स्पॉट की असेसमेंट के लिए यूज नहीं किया गया, सिर्फ लर्नर की को हमने जस्ट एक उसकी अटेंटिवनेस चेक करने के लिए बनाया गया। हम यहाँ पे ग्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। द पर्पज इज टू जस्ट थिंक दैट द लर्नर्स हमारे एंगेज है या नहीं है। तो दिस इज डन टू द एलईडी। तो एलईडी बेसिकली मैं रिवाइज कर रहा हूँ दोबारा क्या है। एलईडी एक शॉर्ट वीडियो बनानी पड़ेगी आपको, अपनी यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाइए फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, 5 मिनट मैनेजमेंट के बारे में बोलिए, एक क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। क्वेश्चन को बाद अपने 10 सेकंड के लिए, अगले 10 सेकंड में कुछ नहीं बोलना। अगले 10 सेकंड के बाद मान लो आपके कनेक्टेड हैं, आपके बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आप आंसर दीजिए, देखिए कि उन लोगों के आंसर्स क्या होंगे। वो डिस्कशन फोरम में आपके आंसर्स आपको बता देंगे वो क्या क्या है उनके, ठीक है। तो एसेंशियली एलईडी क्या करती है, इट प्रमोट्स द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थ्रू लर्नर एक्विजिशन। देखिए ना, बन गया ना लर्नर सेंट्रिक। आप तो बोले जा रहे थे यूट्यूब के ऊपर, तो आपको क्या पता चलता है कि आपका लर्नर सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा। तो अपने ये रिफ्लेक्शन स्पॉट से उसको पता चल जाएगा कितने लोग उसका आंसर सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे, जब वो डिस्कशन फोरम में उसके बारे में बताएंगे। तो इन ए वे देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर, इसलिए बन जाता है लर्नर सेंट्रिक, ठीक है। सिंपली वन वे ट्रांसमिशन नहीं है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल चैनल ऑन द यूट्यूब। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग चैनल बनाते हैं ना, वो कहते हैं कि कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, क्वेश्चन पूछेंगे आप रिप्लाई करेंगे। तो दे वांट ए टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसलिए वो बोला जाता है कि वो टू वे कम्युनिकेशन बनाया जाए, लोग उसे कमेंट करके उनके बारे में बताएं, कुछ क्वेश्चन पूछें। अब जरूरत क्यों है, वाई वी नीड ए रिफ्लेक्शन स्पॉट। देखिए 1 घंटे का लेक्चर बहुत बोरिंग हो जाता है। यहाँ पर मुझे बोलते हुए शायद 10:30 हो गए, मेरे एक 40 मिनट्स हो गए मुझे बोलते हुए। तो आई सपोज आप में से कुछ बोर भी हो गए होंगे मेरे लेक्चर से। तो कभी कभी उस बोरिंग चीज़ को तोड़ने के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, तभी आप चैट बॉक्स में आते हो, ठीक है। तो कंटेंट डिलीवरी जनरली मोनोलॉगस हो जाती है, एक ही धारा में बंदा बोले जा रहा है, ऑडियंस इंटरेक्टिव नहीं फील करती है। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं जिससे आप लर्नर के साथ कंटेंट को जोड़ पाते हो, ठीक है। दैट्स वाई द रिफ्लेक्शन स्पॉट इज रिक्वायर्ड। इसको आप फिजिकल क्लासरूम टीचिंग में भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो रिफ्लेक्शन स्पॉट इन एलईडी इज a लॉजिकल पॉइंट विद द लर्नर विल इंटरेक्ट विद। वो जस्ट माइक्रो प्रैक्टिस होगी, 10 सेकंड के लिए लेक्चर रोकना होगा, जस्ट माइक्रो प्रैक्टिस, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपका जो लर्नर आपके साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लग रहा है कि यार लर्नर टूट रहा है, क्लास में बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिजिकल क्लासरूम में भी, या आपने ऑनलाइन क्लास में आपका लेक्चर बहुत लंबा हो रहा जा रहा है, तो आस्क ए क्वेश्चन। यहाँ पर देख रहा हूँ आपसे मैंने 2-3 बार रिफ्लेक्शन स्पॉट इंट्रोड्यूस की है। जब भी रिफ्लेक्शन स्पॉट लगाता हूँ तो श्रुति, संदीप, एक और नाम था, वो 3 लोग रिप्लाई करते हैं, लेकिन साथ में एक आध बंदा और नया आ जाता है हर बार। तो धीरे धीरे मैं अपनी इंटरेक्शन बढ़ा रहा हूँ आप लोगों से। रिफ्लेक्शन स्पॉट आप कैसे दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल सकते हैं, देयर शुड बी 1 और 2 लाइन आंसर। ए थर्ड टाइप जो होती है, आप एक लूप लगा दो, एक आस्क द लर्नर कि हाउ इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर टाइप ऑफ लूप। एक क्वेश्चन बना दीजिए, क्वेश्चन बना के उसके बारे में एक और मतलब एक कड़ी डाल दीजिए, छोटी सी एक ट्रिकी क्वेश्चन डाल दो जो उसके बारे में स्टूडेंट्स लगातार उसका आंसर देते रहें, कोई फिक्स उसका आंसर ना हो। और आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन स्पॉट भी डाल सकते हो, 10 मिनट के बाद एक डाला, फिर 10 मिनट के बाद एक और डाल दिया। अब क्या करना होगा, आप घर पे जाइए, आज शाम को बैठिए, अपना एलईडी खुद बनाना अपने आप, ठीक है। देयर आर सम कॉमन वेज यू कैन क्रिएट योर एलईडी। व्हाट आर द ऑप्शंस, वेरियस टाइप्स ऑफ एलईडी अवेलेबल। आपको हार्डवेयर क्या चाहिए होगा, आपको सॉफ्टवेयर क्या चाहिए होगा, टाइमिंग क्या होगी। टाइम तो मैंने श्रुति ने बता दिया, मैंने बता दिया, 12 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हार्डवेयर एक अच्छा सा कैमरा ले लीजिए, स्क्रीन पीछे ग्रीन कलर की बैकग्राउंड रख लीजिए, जहाँ पर थोड़ा सा हमारा बैनर लगा हुआ है एफटीपी का, ये तो ग्रीन कलर के एक लाइट, अगर आप डार्क कपड़े पहन रहे हैं तो पीछे लाइट बैकग्राउंड, अगर आप लाइट कपड़े पहने तो पीछे डार्क बैकग्राउंड, कंट्रास्ट कर लीजिए, ठीक है। एक अच्छा सा स्पीकर हेडफोन हो चाहिए आपके पास, एक अच्छा सा माइक चाहिए। कुछ सॉफ्टवेयर हैं, मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं मेंशन कर पा रहा हूँ, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं,
अगर आपके पास अच्छा वीडियो कैमरा सेटअप है, जैसे वो फोटोग्राफी वाले को होता है, वो तो सोने पे सुहागा है, अगर वो मिल जाए आपके पास अगर है। नहीं तो आप एक ट्राइपॉड स्टैंड रख सकते हैं अपने घर पर, एक अच्छा सा 20-25 मेगापिक्सल का कैमरा हो आपके पास, तो ये आप सब काम कर सकते हैं। कैसे कैसे वीडियो बना सकते हैं, टॉकिंग हेड वीडियो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, स्लाइड्स दिखा सकते हैं, मैं बोल भी रहा हूँ और स्लाइड्स भी देख पा रहे हैं आप मेरे साथ साथ। एक पिक्चर इन पिक्चर अब कॉन्सेप्ट आजकल ये अपने मोबाइल्स में अंदर आता है, ये बड़ा पॉपुलर है। तो बेसिकली आपका टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए ऑडियंस को, ये सब चीज़ें चाहिए आपको। तो ये मैं एलईडी कंस्ट्रक्टर स्किप कर रहा हूँ, ये सारा उसी की मैंने समरी बनाई हुई थी। आई कैन स्किप दिस। ओके, आई होप कि आपको एलईडी समझ लग गया होगा। देयर वर 4 कंपोनेंट्स, एलईडी, LXI, LXT एंड LXI, LBD, LED, LXI and LXT. There were 4 components and we have till done the first component of the MOOC, that was LED. Other components में आता है LBD, Learning by Doing. It is a formative assessment activity. एक होती है summative assessment activity, formative assessment activity. Formative assessment में activity में क्या होता है? It is designed by the teacher itself, ठीक है, to self check the level of the concept attainment. आपको पता कैसे चलेगा कि यार 1 घंटा पढ़ाया आपने, आपके स्टूडेंट को समझ आया या नहीं समझ आ रहा, ठीक है। ऑनलाइन में तो हम देख नहीं सकते ना स्टूडेंट्स को, फिजिकल में तो चलिए देख सकते हैं। तो मूक्स क्रिएट करेंगे तो हाउ विल यू जज कि आपके, वो एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो योर स्टूडेंट शुड बी एबल टू ग्रैब वॉट एवर यू आर डिलीवरिंग टू हिम। दैट्स व्हाई द टॉपिक इज कॉल्ड लर्नर सेंट्रिक। अकेला आपने बोलना नहीं है लेक्चर, आपने बोलने के बाद ये भी पता लगाना है कि आपके लर्नर को समझ आया या नहीं समझ आया, तभी आपको मूक्स कहलाएगा, नहीं तो एक ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल बन के रह जाएगा आपका, ठीक है। और इसके लिए क्या करना है, you need to apply some concept that have been seen and learned in the LED. LED में क्या था, मैंने फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मैंने रिफ्लेक्शन स्पॉट से उनकी एंगेजमेंट चेक की। अब अगला काम आता है कि उनको फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट वाकई समझ आए या नहीं आए, तो अब क्या करना है, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग में क्या होगा, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल सकते हैं, कुछ टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं। तो लर्नर्स यहाँ पर क्या करेंगे, LBD एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जहाँ पे वो रैपिड स्पेसिफिक कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी बताएंगे, जिससे उनकी लर्निंग इंप्रूव हो जाएगी। इस फीडबैक से क्या होता है, जो इंस्ट्रक्टर है उनको अपना प्लेटफॉर्म के बारे में, अपने साउंड क्वालिटी, अपने वीडियो क्वालिटी, अपने कंटेंट के बारे में सब कुछ आइडिया हो जाएगा कि वो सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है या नहीं जा रहा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्टिविटीज में क्या कर सकते हैं, प्राइमरीली यहाँ पर हमने लर्नर को ग्रेड तो नहीं करना है, लेकिन फीडबैक से ये पता चल जाए कि लर्नर्स को अपनी लर्निंग इंप्रूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वी कुड ऐड सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑल्सो, यू कुड हैव सम फीडबैक इन टर्म्स ऑफ करेक्ट, रॉन्ग और राइट आंसर। तो हर ऑप्शन का एक मल्टीपल चॉइस होगा, आप उनसे कराएंगे, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी। इसमें लर्नर सिर्फ ये नहीं बताएगा कि भाई आंसर ठीक है गलत है, बट उसमें ठीक गलत के अलावा उसका आंसर क्यों गलत है क्यों ठीक है ये भी बताएगा, ठीक है। अगर उनका आंसर गलत है तो ये भी बताना पड़ेगा आपको। दिस इज लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी। थर्ड आ जाता है, तो लर्निंग बाय LBD में क्या है, आपको कोई एक्टिविटी देनी पड़ेगी, लेक्चर 10 मिनट का खत्म हो गया आपका, ठीक है, 10 मिनट के बाद आप उनको 3 या 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दीजिए। when if they are able to reply all those with a very good marks, that means they are doing fine, otherwise वो अच्छा नहीं जा रहा उनका काम। आगे आ जाइए LXT। LXT में क्या है, one of the biggest challenge while we are planning MOOCs is addressing diversity. Can you somebody tell me, is anybody from the South India in this number of the participants who are sitting with me? Anybody is from South India, or all are from Punjab area or North India? झा साहब आप कहाँ से हैं? चलिए झा साहब ने रिप्लाई किया। श्रुति, अच्छा आप श्रुति चंडीगढ़ से हैं, चलिए आप तो पंजाब ही बिलोंग करते हैं। आई वांट समबडी, नबिता मलिक, नुपुर वैष्णे, नुपुर एंड नबिता मैम आप कहाँ से हैं, विच एरिया यू डू यू बिलोंग? Okay, I suppose they might be not online with me. So LXT में क्या होता है, we have one biggest challenge which we feel is addressing diversity.
See, this is a number of participants who are sitting with me. I assume many of you are not familiar with our native language, that is Punjabi or Hindi. You might be from the different backgrounds. Some of you might be from the engineering domain. Some of you might be from the arts domain. Some of you might be from the commerce or management domains. So whenever we take a MOOCs course, it is not a compulsion that the people who are joining your course will be from your domain only. It is not compulsion that the people who are joining your lecture or your MOOCs course will be from your same geographical region, because MOOCs courses are spread worldwide. Even the person from not of the Indian origin can also join the MOOCs course. So diversity is a very big challenge for us. The diversity can be thought in a term of multiple dimension. Even in this STTP, I assume many of you are from the different parts of India. So इसके लिए instructor के पास एक challenge थोड़ा और हो जाएगा. The instructor has to simultaneously keep in mind the need of the learners prerequisites. अगर आप MOOC कोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसा MOOC कोर्स क्रिएट कर रहे हैं जिसमें you are involving the persons of the different domains and different fields. You have to keep in mind their learner prerequisites as well as possible advanced topics that are associated with the content. जो तो नए यूजर्स हैं नए हैं उनके लिए आपको कुछ टॉपिक और भी इंक्लूड करने पड़ेंगे प्रीरिक्विसाइट सॉर्ट ऑफ. अगर कोई आपके उसी एरिया के आपके साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपको MOOCs कोर्स जब बनाओगे तो एडवांस टॉपिक्स भी लगाने पड़ेंगे. लर्निंग एक्सटेंशन ट्रैजेक्टरीज, कुछ एक्सटेंड करना पड़ा जो टॉप कंटेंट्स को. सो होता क्या एक चीज और भी है. आप में से काफ़ी ने ये कोर्स एनरोल किया होगा, कईयों को प्रमोशन चाहिए होगी, कुछ माइट बी डूइंग PhD ऑल्सो, कईयों को किसी ने फोर्स किया होगा, कईयों के किसी के रिलेशन होंगे. अलग अलग रीज़न है सबके इस FDP को ज्वाइन करने के. कईयों को सर्टिफिकेट चाहिए होगा, टेंजिबल आउटकम्स चाहिए होते हैं. कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के कारण ज्वाइन करते हैं कि फलाना स्पीकर आ रहा है मुझे उसका लेक्चर सुनना है तो आई हैव टू ज्वाइन दिस कोर्स. कुछ स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, वो कुछ नया सीखना चाहते हैं. कुछ प्रोफेशनल्स होंगे, they want to learn new skills that they might incorporate in their daily job work. So the learners, they come from different areas. Some are not proficient in English also, some are proficient in English. So it becomes a big challenge for the instructor to create the extension trajectories both for the naive user as well as for the expert users. उसको हर तरह के यूजर को माइंड में रखना पड़ेगा कि भाई जो यूजर्स हैं वो सर्टिफिकेट वाले भी हैं, वो पर्सनल गेन वाले भी हैं, वो कुछ रिलेशन मैनेजमेंट वाले भी हैं, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं. ओके, तो एक पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है, टीचर इस चैलेंज को कैसे करेगा. MOOCs कोर्सेज के अंदर एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, आपको एडिशनल रीडिंग मटेरियल देना पड़ेगा. ठीक है, तो लर्निंग एक्सटेंशन ट्रैजेक्टरीज क्या होता है. It is a one way to aid the MOOC instructor in terms of the diversity. तो करना क्या होगा, you have to provide wide variety of learning resources immediately followed by that assimilation activity जो आपने कराई है. मान लो आपने 10 मिनट का लेक्चर लिया, ठीक है, you created a 10 minutes MOOC course. 10 मिनट के लेक्चर में you have introduced one reflection spot. 10 मिनट के बाद आपने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट लिया. You created discussion forum where someone told ki ma'am this is the right answer, this is the wrong answer, and after that at the end of the lecture you have to provide some reading material so that the advanced user can read it. This become a complete MOOC. Okay, types of learning resources आप कैसे provide कर सकते हैं. It could be some video, it could be some link to the some your various web pages. Okay, सम रिसर्च पेपर हो सकते हैं, ठीक है, जो टॉपिक के ऊपर हुए हैं. तो डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी अवेलेबल है ये भी दे सकते हैं. लर्नर्स क्या कर सकते हैं, द लर्नर्स कैन एक्सेस दिस रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द नीड एंड द इंटरेस्ट. ठीक है, तो लर्नर्स क्या करेंगे, उनको दे आर रिक्वायर्ड टू आंसर द एसिमुलेशन क्यूज. इसके बाद एक नया क्यूज आप ऐड करोगे, एसिमुलेशन क्यूज. एसिमुलेशन क्यूज इज सम रिलेटेड टू सम एडवांस टॉपिक्स, ठीक है, जो जिन्होंने वो रिसोर्सेज पढ़े हैं वही उनका आंसर दे पाएंगे. बन गया ना लर्नर सेंट्रिक. आप अकेला पढ़ा नहीं रहे हैं, वी आर नॉट ओनली टीचिंग, वी आर प्रोवाइडिंग सम मटेरियल टू देम, एंड आउट ऑफ दैट मटेरियल अगेन यू आर आस्क्ड टू सम
some cues कि भाई उस मटेरियल में से ये क्यूज आएगा आपको. इन ए वे स्टूडेंट हैव टू रीड दैट लर्निंग मटेरियल. कनेक्टिविटी आपकी बनती रहेगी, तो लर्नर सेंट्रिक बन जाएगा वो कोर्स. ठीक है, अकेला आपने मटेरियल दे दिया, पढ़ा नहीं पढ़ा, हु नोज. बट इफ यू एंटर सिमुलेशन क्यूज, अपने बाद में सिमुलेशन क्यूज जो देंगे उसके अब ग्रेडिंग भी होगी, इसके मार्क्स भी लगेंगे. मूक्स कोर्सेज ऐसा ही होता है. मूक्स कोर्सेज में हमें असाइनमेंट्स मिलती हैं जो जिनके कुछ मार्क्स नहीं होते. मूक्स कोर्सेज में हमें डिस्कशन फोरम भी क्रिएट करते हैं जिसके कोई मार्क्स नहीं होते. मूक्स कोर्सेज में आपको एडिशनल रिसोर्सेज मटेरियल देना पड़ेगा. उसके बाद क्यूज भी आता है. क्यूज में एडिशनल रिसोर्सेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लर्निंग एलईडी से भी पूछे जाते हैं. ये होता है जनरली एक मूक्स कोर्स में. लास्ट है एलेक्साई. बड़ा अच्छा है, लास्ट है कंपोनेंट किसी भी मूक का. मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ. एलईडी, एलबीडी, एलएक्सटी और एलेक्साई. लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डायलॉग, लर्निंग एक्सटेंशन ट्रैजेक्टरीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस इंटरैक्शन. ये नया लास्ट है. लर्निंग एक्सपीरियंस इंटरैक्शन में क्या है? देयर आर 3 कंपोनेंट्स. ये भी किसी मूक्स कोर्स में आपको क्रिएट करना पड़ेगा. अब ये सब एक काम कीजिएगा, इस लेक्चर को सुनने के बाद ये सारी के सारे यूट्यूब चैनल जब बनाएंगे, आप अपना एक लेक्चर क्रिएट करेंगे छोटा सा मूक्स कोर्स, तो उसके ऊपर ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देना. एज्यूम करना कि आपके 100 ऑफ पार्टिसिपेंट्स है जो आपका लेक्चर सुनेंगे, बट ऑल्दो देयर माइट बी नो वन बिकॉज आप एक डमी लेक्चर क्रिएट कर रहे हो, लेकिन ये सारे कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेट करना. आप एक छोटा सा ट्रायल वीडियो बना पाओगे जब आप कभी मूक कोर्स क्रिएट करना आपने किसी टॉपिक के बारे में. तो आपकी इंट्रो जब होती है IIT रुड़की में इसके रिगार्डिंग, मैं अभी आपको बताऊंगा फंडिंग कहाँ से मिलती है, इसका फ़ायदा क्या होगा करने का. तो यू विल लव टू मेक योर लेक्चर ऑल्सो. तो जब आप वो बना लोगे अपना सैम्पल वीडियो, आप किसी को भी दिखा सकते हो. जब आपके इंटरव्यू होती है तो वहाँ पर दिखाना पड़ता है कि हमने एक सैम्पल मूव बनाया हुआ है. तो उसके बेसिस पे आपकी प्रिलिमिनरी सिलेक्शन होती है. बाद में तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज चेक करते हैं सारा. द एक्सपर्ट चेक योर कम्युनिकेशन स्किल, योर वे ऑफ प्रेजेंटिंग, योर कॉन्फिडेंस, योर ऑरेटरी स्किल्स. ये सब चीज़ें काउंट होती हैं जब आप मूक्स कोर्स क्रिएट करते हो. So what is LXI? LXI last component है. It consists of 3 component: focus question, discussion and reflection quiz. पढ़ते हैं क्या है फोकस क्वेश्चन. फोकस का मतलब क्या है? जो डिस्कशन को जोड़ देता है. मैं अभी थोड़ी देर पहले पूछा, I have friends of my class 10th, we were discussing on the Saturday. One of the person asked कि ये किसानों के मुद्दे के बारे में उसने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया. He was living in Australia and he asked from all our Indian friends. Some were in favor of those rules, some were not in favor of those rules. तो उसने सटीक से क्वेश्चन पूछा कि यार what will the farmers gain if this rule get distraction, if these rules are taken back by the government. तो एक फोकस क्वेश्चन पूछा था उसने. कईयों ने उसकी रिप्लाई अच्छी की, फेवर में की, कईयों ने उसकी रिप्लाई नेगेटिव में की. ठीक है, तो उससे क्या होती है, हमारी जो आधा घंटा चैट चली ना उस ग्रुप के अंदर, वो सिर्फ के सिर्फ उसी चीज के ऊपर थी. कोई बीच में गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं आया, कोई हैप्पी बर्थडे विश नहीं हुआ, कोई इधर उधर का कोई मैसेज नहीं आया. वो चैट अब आज भी मेरे फोन में है मौजूद. सैटरडे को मेरे फ्रेंड्स के साथ हमारी चैट हो रही थी. तो 11:30 से 12:15 तक 45 मिनट वी कीप ऑन डिस्कसिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दोस रूल्स ओनली. तो एक मतलब क्या हुआ, एक फोकस क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आपके, जिससे आपकी जो ऑडियंस है, जिसके आपके जो पार्टिसिपेंट्स है, they don't get distracted, they get anchored to the discussion. anchor होता है बंद जाना. तो focus question ऐसा बनाना पड़ेगा आपको, which will anchor the discussion. Don't ask something define fundamentals of management. Okay, ask some tricky question which creates some thinking process among your learners. ठीक है, तो उससे क्या होगा, it will avoid the scattering which can happen otherwise वो क्वेश्चन स्कैटर हो जाएगा, उसका आंसर सही नहीं मिल पाएगा आपको. इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, लर्निंग LXI से द लर्नर्स आर फोकस्ड, फोर्स्ड टू point their discussion point to that question only which is being asked. Okay, so the whatever is being delivered in that the discussion forum through that focus question, it will be very clear. now आगे आ जाती है टर्म डिस्कशन थ्रेड. द डिस्कशन थ्रेड क्या है? इट एक्सपोजेस द वर्सेटाइल व्यू पॉइंट्स. देखिए, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे चैट बॉक्स के अंदर समथिंग कि कोई लेक्चर आपको अच्छा लगा इस FDP में, तो many of you might be writing some good point, many of you writing some bad points of that lecture. तो
हमारी डिस्कशन क्या होगी, वर्सेटाइल व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। किसी को लेक्चर को अच्छा क्यों लगा, ठीक है, उस लेक्चर में कोई कमियां बताएगा, वो कमियां बताने वाला हो जाएगा। जैसे डिबेट होता है, डिबेट में हम वी हैव ए वर्सेटाइल व्यू पॉइंट्स। इट डजेंट मैटर कि कौन जीता कौन हारा, कोई हार जीत वाली बात नहीं है, सिर्फ ये कि लर्नर्स को कितनी नॉलेज है उस चीज के बारे में, वो डिस्कशन को स्टीयर करने में काम करता है डिस्कशन फोरम। जितने भी आपको कल को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक चीज और मूक्स में की जाती है, मूक्स में जब क्यूज पूछा जाता है ना, कभी कभी डिस्कशन फोरम से पूछा जाता है कि श्रुति ने लेक्चर में क्या कहा था। तो इससे क्या होता है, सब देखेंगे कि श्रुति का जो थ्रेड था वो क्या, उसने क्वेश्चन उसने पोस्ट किया था। अब मैं आपसे पूछूं, श्रुति ने बोला था कि कितने मिनट की वीडियो रेलिवेंट चाहिए, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू रिप्लाई दैट क्यूरी, इट मींस आप सारे कनेक्टेड थे लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो वन कैन फाइंड ऑल द रिलेटेड थ्रेड पॉइंट्स इन द डिस्कशन फोरम। इससे क्या होता है, the participant get encouraged, they get encouraged to be involved in that thread, okay, discussion forum में। लास्ट टर्म आई थी रिफ्लेक्शन क्यूज, मैंने थोड़ी देर पहले 3 पॉइंट बताए थे, फोकस क्वेश्चन, डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन क्यूज। तो रिफ्लेक्शन क्यूज में क्या है, रिफ्लेक्शन क्यूज परफेक्ट क्लोजर प्रोवाइड करता है आपकी एक्टिविटी को। It also incentivizes the engagement of the learner by making them visit to discussion forum and answering the quiz question. अब रिफ्लेक्शन क्यूज में क्या होगा, जो डिस्कशन फोरम में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हुए होंगे, जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उनमें से कुछ क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, ताकि उसे पता चल जाए कि हाउ मेनी ऑफ द पर्सन्स वर बेसिकली इन्वॉल्वड इन दैट लेक्चर। आगे ना लर्नर सेंट्रिक, मैं बार बार एक टर्म वापस रिपीट कर देता हूँ हर थोड़ी देर बाद कि लर्नर सेंट्रिक। वी आर गोइंग टू क्रिएट ए मूक कोर्स विच इज लर्नर सेंट्रिक। लर्नर सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि हमने पता लगाते रहना कि हमारा लर्नर सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ इज ब्रेन, कि उसके ब्रेन के सीखने की पावर कैसी है, हम तो ये चाहते हैं कि वो इन्वॉल्व है सिस्टम के साथ या नहीं है। यहाँ पे चैट बॉक्स में मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट दैट, श्रुति ने एक रिप्लाई किया था कि ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए लेक्चर की। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप में से कितने लोग उसका आंसर दे पाओगे, तो दिस बिकम ए रिफ्लेक्शन क्विज। तो इन शॉर्ट, LXI cultivates peer learners among the discussion forum, among the focus discussion। जो हमारी फोकस डिस्कशन हुई थी कि भाई लेक्चर कितने मिनट का होना चाहिए, ठीक है, उसमें सबसे जो रेलेवेंट आंसर मुझे लगा 12 मिनट लगा। तो अगली बार मैं क्यूज में क्वेश्चन यही पूछूंगा, व्हाट इज द प्रोबेबल टाइम फॉर ए स्मॉल वीडियो। अगर आपने वो डिस्कशन फोरम में अपने अपने रेलिवेंट व्यूज दिए होंगे तभी आप दे पाओगे। तो इस एक तरीके से पीयर लर्निंग, आप एक दूसरे से सीख पा रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए मूक्स कोर्स। मूक्स कोर्स के अंदर के आपके अंदर तो आपको एक रिफ्लेक्शन क्यूज बनाना पड़ेगा क्लास के अंदर। दैट क्यूज विल बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम योर डिस्कशन फोरम। तो इन ए वे हम लर्नर के साथ जुड़ पाएंगे दोबारा, कि जो जो लर्नर ने डिस्कस किया उसी में से क्वेश्चन पूछ लेंगे दोबारा उनसे। चलिए मूक्स प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। मूक्स प्लेटफॉर्म कराता क्या आपको, इट इज ए प्लेस वेयर द लर्नर्स आर टेकन अवे फ्रॉम द क्लासरूम एटमॉस्फेयर। अब क्लासरूम में तो नहीं बैठे होंगे, बिकॉज द मेनी ऑफ द पीपल विल बी सिटिंग इन देयर होम, विल बी लिसनिंग टू अ लेक्चर, बट they are not connected to you physically, but they are connected to you through reflection spot, through assimilation cues, through focus question, through discussion forum. All these things are way of connecting your learner with you. Okay, so the LXI जो हमने लास्ट किया, it provides exactly the experience। जब हम क्लासरूम में इंटरेक्ट करते हैं, क्लासरूम में कहते हैं ना कि स्टूडेंट से क्लास में पूछे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 50 की क्लास में से, वी आस्क समथिंग अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो अलग अलग रिप्लाई सब लोग कर रहे हो, तो टीचर कहता है ना कि यार बच्चे आपका सबसे आंसर सबसे बेस्ट है। तो डिस्कशन फोरम भी ऐसा ही है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डिस्कशन फोरम, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू सी ऑल आवर पार्टिसिपेंट एंड इन ए वे वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। तो LXI क्या करता है, LXI पीयर लर्निंग को कल्टीवेट करता है, बिकॉज यहाँ पर हमें तो यहाँ पर बेसिकली हमें एक दूसरे से कनेक्शन किया गया एक हमारा पीयर लर्निंग के थ्रू। जब आप क्यूरीज आस्क करते हो, कुछ दूसरों के पोस्ट को पढ़ते हो, आप उनके आंसर्स देते हो, तो आप डाइवर्स लर्निंग पाथ पे चले जाते हो, ठीक है। इन द एंड यू बिल्ड ए कलेक्टिव नॉलेज बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो क्लासरूम में तो वो हम फिजिकली इंटरेक्ट कर पाते हैं, यहाँ पर आपको डिस्कशन फोरम क्रिएट करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था एक लेक्चर और होगा मॉडल का, जिसमें आपको डिस्कशन फोरम भी क्रिएट करना सिखा दूंगा। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, या आप अपना चैट बॉक्स बना लीजिए,
चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल दीजिए, हर बंदा अपना अपना रिप्लाई करेगा जो जो उस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल होंगे अपने जीमेल आईडी के थ्रू, देन दे आर एबल टू रिप्लाई ईच एंड एवरी आंसर। नेक्स्ट टर्म है ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन में क्या है? ऑर्केस्ट्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो आपके मूक्स को लर्नर सेंट्रिक बनाते हैं। इट इज बिकॉज यू कैन एस्टैब्लिश द लर्नर्स कैन गेट ए फीडबैक फ्रॉम द लर्नर्स। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब होता है बांधना सब चीज़ों को। हमें कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे हम सब चीज़ों को आपस में जोड़ पाएंगे, ठीक है। लर्नर का कनेक्ट बनाना जरूरी है। यू नीड टू इनकॉर्पोरेट स्मॉल वीडियो, you need to have a reflection quiz, you need to have a assimilation quiz, you need to have a focus question, you need to have a discussion thread। तो उन सब चीज़ों को जोड़ने को बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। ये थ्योरी छोड़ दीजिए, कुछ खास नहीं है। चलिए बात करते हैं, हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं मूक्स कोर्सेज बनाने के, LBD, LXI एंड LXI एंड LXT। चलिए कोर्स डिज़ाइन मैं पूछता हूँ मूक्स के अंदर अब क्या है। पहला क्या है, आपको जो कोर्स आपने बनाना है उसका आपको स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। एनीबडी कैन नेम सम कोर्स विच यू आर विलिंग टू मेक योर MOOCs कोर्सेज। कोई चैट बॉक्स में लिखेगा इसका नाम, तो मैं उसका एग्जांपल लेके चलता हूँ। श्रुति, आर यू विलिंग टू मेक योर MOOCs कोर्स? ओके, डेटा माइनिंग। श्रुति आप कंप्यूटर साइंस हैं, तो डेटा माइनिंग की आपको यू नीड टू नो द स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स एंड ओवरऑल डिजाइन ऑफ दैट कोर्स, ठीक है। यू नीड टू हैव द कोर्स लेवल, उसके आउटकम्स क्या होंगे आपको वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड यू नीड टू डेवलप ए कोर्स नाउ, उसका लेआउट बनाना है, ठीक है। दैट हाउ द लर्नर शुड बी एबल टू लर्न फ्रॉम दैट कोर्स। उस कोर्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करने, हर मॉड्यूल का करस्पॉन्डिंग आउटकम क्या होगा, ठीक है। और उन सब चीज़ों को पिरोना है। वी हैव टू टाई अप ऑल दोज थिंग्स इन दिस कंप्लीट MOOC सेटिंग। आप टॉपिक ले लीजिए इंट्रोडक्शन टू डेटा माइनिंग या टाइप्स ऑफ डेटा माइनिंग ले लीजिए, तो आपको क्लासिफिकेशन बताते हैं या KNN क्लासिफायर पहले बताते हैं, ये सारे टर्म्स हैं डेटा माइनिंग के। तो यू हैव टू टाई अप ऑल दोज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ दोज MOOC सेटिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड जस्ट बिफोर नाउ, ओके। तो लर्नर कनेक्ट बड़ा जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है व्हेन वी आर सिटिंग ऑन ए वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड हैविंग ए ऑनलाइन क्लासरूम, तो learner contact is very important, because when we are taking class in a physical classroom, it doesn't matter because the students are sitting in front of us and it is not a big deal to interact with them. But when we are sitting on a MOOCs platform and taking the class of the various learners who are sitting at the remote locations of the various parts of country, so the significant component is learner connect। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो कि 1,60,000 लोग एनरोल किए लेकिन 20,000 ही कर पाए। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर मैं MOOCs कोर्सेज का अपने कॉलेज में इंचार्ज हूँ, तो हम सारे डिपार्टमेंट में फैकल्टी मेंबर्स को, टीचर्स, स्टूडेंट्स को भी बूस्ट करते रहते हैं कि वो MOOCs कोर्सेज अटेंड करें। वी हैव ए ग्रेडिंग मैकेनिज्म फॉर देम, हम उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेडिट देते हैं। तो हर जब भी MOOCs कोर्सेज फ्लोड होते हैं तो वी हैव 1,000 पार्टिसिपेंट हु गेट रजिस्टर्ड, and out of 1,000 only 400 to 500 go to give the final test भी होता है, उसके बाद फिर MOOCs का सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसके बाद 80-90% उसको क्लियर कर पाते हैं, 20% फिर रह जाते हैं। तो जो हैवी ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है उसका कारण यही है कि टीचर्स कंप्लेंट कभी कभी कर देते हैं कि स्टूडेंट कोर्सेज लगाते जरूर हैं लेकिन बीच में वो छोड़ जाते हैं। वो बिगेस्ट रीज़न एक ये भी है, लर्नर कनेक्ट। देखिए all the 5 fingers are not of same size, ठीक है। एवरी टाइम ए इंस्ट्रक्टर जो पढ़ाता है उसकी आपको समझ आएगी या नहीं आ पाएगी। कई MOOCs कोर्सेज अगर वो सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर रहे हैं MOOCs कोर्सेज तो ही लर्नर कनेक्ट होगा। अगर वो कुछ मिस कर रहे हैं या उनकी टीचिंग पैडागोगी या ऑरेटरी स्किल इतनी अच्छी नहीं है तो इट माइट हैपन द पीपल विल लीव द MOOCs कोर्सेज इन बिटवीन। सो जो हैवी ड्रॉप आउट रेट का एक कारण ये भी है, लर्नर कनेक्ट नहीं होता। उन्होंने लेक्चर दिया, लेक्चर दे के छोड़ दिया, ठीक है। देयर इज ए रिग्रेस चेक होना चाहिए कि MOOCs कोर्सेज जब क्रिएट किए जाएं तो उसके अंदर ये LED, LBD, LXI और LXT ये चारों के चारों इंग्रेडिएंट होने चाहिए। अदरवाइज
तो लर्नर कनेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है. तो लर्नर विल जस्ट नॉट फील कनेक्टेड जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा. इसका मतलब ये है कि चैलेंजेस बहुत हैं मूक्स कोर्सेज को बनाने में. कारण ये है कि नंबर्स बहुत हाई, मूक्स कोर्सेज बहुत बन चुके हैं. आप बनाओगे कैसा, आपको सोचना पड़ेगा. आप कोई भी MBA का सब्जेक्ट बोलो, उसका मूक्स कोर्स अवेलेबल होगा. तो द नंबर्स आर रियली हाई, डाइवर्सिटी बहुत है. यू नीड टू बी वेरी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश ऑल्सो, because many of the participants will from the all over India, who will be in fact from the outside India, where you must have a good proficiency in English. The people from the various backgrounds and who have some that prerequisite knowledge as well as non-prerequisite knowledge will be also enrolling. So it's a challenge for you. I am a person from the computer IT background, and if I go to learn some management subject, first the instructor has to teach me some prerequisites also, because in MOOCs courses anybody can enroll, and it is the responsibility of the instructor to incorporate all those things which are prerequisites, and he has to incorporate all those things which are required for the experienced user also. So it's a challenge for him. And also the learners जो होते हैं, they are trying to learn it from their remote location. तो एक तरीके से वो फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते. फिजिकली कनेक्टेड हो जाएं तो वो पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है. तो इट्स अ चैलेंज फॉर द. तो वे टू मेंटेन ऑल दोस थिंग्स इज लर्नर कनेक्ट. ठीक है, आप अपनी LED इस्तेमाल कीजिए. ठीक है, रिफ्लेक्शन स्पॉट लाइए लेक्चर के अंदर. सो द मोमेंट यू हैव रिफ्लेक्शन स्पॉट, आप लेक्चर को पॉज करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगी. लर्नर सोचेगा तो लर्नर रिस्पॉन्ड करेगा. जब वो रिस्पॉन्ड करेगा तो आप उसके साथ जुड़ पाओगे. डिस्कशन फोरम में वो आंसर देगा, तो इन ए वे यू विल बी कनेक्टेड. सिमुलेशन क्यूज, जिसमें वो डिस्कशन फोरम में किसी और पीयर का आंसर देगा, इन ए वे यू ऑल आर कनेक्टेड. ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर को क्या होता है, उसको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. लर्नर कनेक्ट थ्रू आउट द कोर्स. अगर वो फीडबैक भी साथ साथ लेता रहे तो LBD के दौरान, तो लर्नर्स की जो लर्निंग इंप्रूव हो जाती है, तो अपना वो कस्टमाइज कर लेता है अपने रिस्पॉन्स को, तो लर्नर कनेक्ट और बना लेता है. You can skip this. चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. वे टू गेट अ ग्रांट फॉर क्रिएटिंग दिस MOOCs courses. Every year the AICT floats the grants proposal. This is the link aict.india.org.downloads MHRD Moodle guidelines.20.pdf.updated. You can, this is the some PDF file which you can download and read very carefully. And if you are starting thinking to make your own MOOCs courses, तो उसके लिए monetary benefits बहुत ज़्यादा हैं. आप क्यों बनाओगे अपना MOOCs courses? ये इसके monetary benefits हैं. This is a very lucrative one. The course coordinator get rupees 1 to 2 lakh rupees. If you have some research scholar or a teaching assistant with you, or some part-time MTech or MBA student with you, you will be getting 50,000. तो आप अपने साथ इन्वॉल्व कर लीजिए. अगर आपका कोर्स अच्छा चलता है और वो दोबारा से रीरन हो जाता है, तो आपको 1 लाख रुपये फिर से मिलेगा. तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो यू नीड टू वर्क हार्ड टू मेक, उसके लिए थोड़ा सा सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए. तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने YouTube के ऊपर अपना छोटा सा एक MOOC कोर्स बनाइए, ट्रायल कीजिए. उसके अंदर यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट LED, LBD, LXI, LXT and make a dummy participant of 5 persons with you, or you can incorporate your own class. आप अपनी किसी क्लास को पढ़ाते हैं तो आप उनका बना लीजिए. उसके बाद आपको प्रपोजल बनाना पड़ता है. नॉर्थ इंडिया में IIT रुड़कीज़ में ये इसका ऑडिशन किया जाता है. They ask you to send your CD for preliminary round, and if you are selected, then they ask you to make a certain MOOCs courses. But ये इतना ध्यान रखना पड़ता है कि MOOCs courses के अंदर you need to find out कि यार कौन से सब्जेक्ट का MOOC पहले से एग्जिस्टिंग नहीं है. there are some courses जिनके MOOCs बहुत प्रोफेसर ने बनाए हुए हैं, और वो दोबारा से आपके कोई लोग ज्वाइन नहीं करेंगे बिकॉज दे हैव ए गुड मार्केट. तो आपको थोड़ा सा सिनेरियो के अकॉर्डिंगली चीज़ें लगानी पड़ेगी अपने कंटेंट में. डेटा माइनिंग हुआ, मशीन लर्निंग हुआ. मैं कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बता देता हूँ, अगर कंप्यूटर साइंस वाले हैं यहाँ पर, तो यू कैन थिंक ऑफ क्रिएटिंग ए MOOCs courses on virtual reality and augmented reality, machine learning, data mining, artificial intelligence, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++. इनके MOOCs courses बहुत ज़्यादा हैं, एंड दिस लाइन इज़ रियली सैचुरेटेड वन. मुझे मैनेजमेंट के MOOCs courses नहीं पता, लेकिन मैं आपको वो भी बता देता हूँ. तो if you are thinking, पहले the first and the foremost thing is that
You must have a very good communication skill. You must have a very good oratory skills and good cameras, speaking skills. Okay, and then you must know the technical know-how about this creating MOOCs courses. These are all four component: LED, LBD, LXI, and LXT. And then you can start thinking of a small channel or a dummy MOOC course, because the monetary benefits are really very good one. And I hope any of you will be surely going in this direction. So this is a takeaway from your home. If you are thinking to create some MOOCs courses, you can create a MOOC which is a bit different from your classroom teaching. And if you are not thinking of creating your MOOCs courses, if you are very comfortable in your own environment, then please try to incorporate fractions plot in your normal classroom teaching. Okay, follow these all steps, and I'm sure you will be able to at least make a quick start. थोड़ा सा start मिल जाएगा आपको. एक important बात और भी है. It is not necessary to have LED, LBD, LXI, LXT in that sequence which I have discussed. So it is not a compulsion कि पहले आपने ये बनाना है. आप थोड़ा सा आगे पीछे भी sequencing को कर सकते हैं. So this was something about. Thank you, Shruti. I hope you might have gained something from the lecture. Anybody else? I am ready to answer any query, because I am here a MOOCs in charge in our college, and we have been thinking for the last 2-3 years. In fact, पहले तो मुझे ये सीखना पड़ रहा कि वे MOOCs होते क्या हैं. ये डायरेक्टली ये नहीं है कि आपने लेक्चर यूट्यूब के ऊपर डाल दिया वो MOOCs कोर्सेज हैं. तो फर्स्ट मैंने भी ट्रेनिंग ली इसके डिजाइनिंग लर्नर सेंट्रिक MOOCs की. तो अब मुझे समझ लग गया है. अब हम एक सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं, और मैं साथ में कुछ पार्टनर्स ढूंढ रहा हूँ. सब्जेक्ट मुझे मिल गया है वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी के MOOCs कोर्सेज बहुत कम है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं वर्चुअल रियलिटी का MOOCs कोर्स बनाऊंगा. तो जब भी ये अगली बार एप्लीकेशंस मांगी जाती हैं प्रपोजल्स, तो डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू मेक दिस MOOCs कोर्सेज. इफ़ यू आर क्वाइट प्रोफिशिएंट इनफ और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो मैं आपको एक थोड़ा हिंट दे देता हूँ. डिप्लोमा के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके MOOCs कोर्सेज बहुत कम है. और एक खास बात ये है कि इसके अंदर फंडिंग एक और चीज़ में मिल जाती है. इफ़ यू आर प्रोफिशिएंट इन सम अदर लैंग्वेज लाइक बंगाली, तमिल, मलयालम, सॉरी एनी अदर लैंग्वेज, तो आजकल वो सब टाइटल्स की भी बड़ी डिमांड आने लगी है. हिंदी के लिए तो कोई खास डिफिकल्टी नहीं है, इंग्लिश के लिए नहीं है, पंजाबी के भी उनको सब टाइटल्स चाहिए होते हैं. जो मैंने लिंक बताया आपको थोड़ी देर पहले, आप उस लिंक पर जाके उन पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. ये अपने घर से करनी होती हैं. दीज आर a way of extra income for all of us, because we all are professionals and we have good knowledge. And if you have some good natural language processing skills, तो आप ये भी कर सकते हैं. अगर आप डिप्लोमा बैकग्राउंड का सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, उसके अंदर स्कोप अच्छा है, लेकिन पहले आपको सिलेक्ट होना पड़ेगा. जो ग्रांट मिलती है आपको वो 20 लाख के करीब ग्रांट मिल जाती है. श्रुति मैंने वो बताया था अभी थोड़ी देर पहले लिंक, ये रहा, ये वाला आप आए, ये देख लीजिए. Please note down this link, have a screenshot, and then you can read it later. This will completely tell to you how all those things can be incorporated, or just you will get an idea that how you can apply for this grant. In fact, all these things can be assisted with one of the software called Moodle, which we are incorporating in our college also. Moodle के अंदर काफ़ी सारी facilities हैं ये सारी बनाने वाली. डिस्कशन फॉरम है, वीडियो लेक्चर्स क्रिएट हो जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, फोकस क्वेश्चन है. आई एम हैविंग अनदर लेक्चर ऑन प्रॉब्ली ऑन सैटरडे और मंडे, जहाँ पर आपको वो लेक्चर मिस मत करिएगा. उसमें मॉडल क्रिएट करना सिखाऊंगा. तो both the lectures are tie up together, and this was one of the first part of the lecture, and I hope you might have enjoyed this lecture. And I request all of you to kindly go to these guidelines, because these are really going to help you in improving our financial health also, as well as our academic growth also, when we go on to create such books. Okay, thank you very much, and I hope any queries are welcome. Thank you, Shruti. Thank you, Sandeep. Thank you, Jha. Anybody can ask a question? Okay, there are one more question. Okay, thank you, Shruti. Most of acknowledging, I am acknowledging all those persons who have replied and answered to my reflection spot: Richa Agarwal, Shruti Agarwal, Sandeep Singh. I hope you might have enjoyed this lecture, and this link is, please read this link carefully and try to apply this
this MOOCs courses, because this is really going to growth you both ways, both financially as well as academically. Okay. So thank you, sir. Thank you very much for making this session very meaningful and interesting. Thank you, participants. Now we will have the second session of today at 11:30. So we will meet at 11:30. Thank you all.